Hello students, myself in the discipline teacher high school Dadamoda. Today I am here with another poem. The poem is When You Are Old. This is your next poem, students. In this poem, the poet expresses his views about the two stages of a life of a person, the old stage and the young stage. In this poem, the poet W.B. Yeats is the writer of this poem. W.B. Yeats says that when you are old and grey and full of sleep, it means when after the first stage, means after the young stage, you will pass the next stage, means when you will become old and you will just like a sleepy person, means you will become weak and nodding by the fire taken down this book. He says to someone that when you will sit near the fire and you will get this book will be in your hands and you will read this book and slowly read and dream of the soft look. He says that in this book there will be some poems written by him and you will read these poems slowly and your soft look will be there. It means he or she will remember their first stage, the young stage. No, their stage is second stage. They will lost in first stage with the help of this book. Your eyes had once and of their shadow deep. The poet here says to someone that your physical features, he expresses her eyes in the young stage and means that your physical appearance in the young stage will be very good or very beautiful. It was very beautiful, but now you are a sleepy person, you are a tired person, you are a weak person. So he compares these stages of a person in two steps, that is first is young stage, and second is old stage. Then he says, how many loved your movement of glad grace. Now it is clear that the poem has been written by the poet to his beloved, someone whose he loves, he selected, but perhaps his friend never selected him, never accept him. He says that how many loved you movement of glad grace. So he says that many people like you because of your beautifulness, because of your physical good appearance, but and love your beauty with love false hurt you. You don't know that whether they love you truly or their love is false for you. You don't know this. But one man loved the pilgrim soul in you. He says that I is the man, I am the man, I was the man who loves you from the pure of my heart, from the core of my heart. It means the poet says that his love is spiritual for her or his beloved, and loved that sorrow of your changing face. He says that I accept you, I like you, I love you for your physical appearance, for your beautifulness, as in the times of happiness as well as in the time of sorrow. Means every moment of life he likes his partner. And bending down beside the glowing bar, murmur a little, sad whole love fled, and paced upon the mountain overhead, and hid his face and a crowd of stars. In this stanza, the poet says that when you will sit down near the fire, a glowing bar means a fire in where the poet's beloved sit. When you will sit near the glowing bars means when you will sit near the fire and you will be tired, you will be weak, you will be grow grey, your wrinkles on your face, there will be, you remember that very sadly you remember that my love has fled away in the mountains. No one is able to see my love, and at that time you will remember me. Means poet says that his beloved will remember him at this old stage when she will grow old and her face will become wrinkled and their beauty has been vanished away. तो बच्चों इसके तीन स्टेंजे हैं
ये पोएम जो है व्हेन यू आर ओल्ड, तुम जब बूढ़े हो जाओगे, ये लिखी है W.B. यीट्स ने। विलियम बटलर यीट्स हैं इंग्लिश के एक वेल नोन अच्छे जो हैं वो पोइट हैं, उन्होंने ये लिखी है। इसमें पोइट ने क्या कहा है कि आदमी की दो स्टेजें होती हैं, एक होती है यंग यानी जवानी की, और एक होती है ओल्ड यानी बुढ़ापे की। तो इस स्टेज में फर्स्ट स्टेंजा ये है, इसमें वो कहते हैं व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। वो कहते हैं इसमें किसी को उन्होंने जो है वो सामने नहीं लाया। वो कहते हैं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा जो है चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम्हारे बाल जो है वो ग्रे हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, फुल ऑफ स्लीप मतलब ऐसे लगोगे कि तुम सोए हुए हो, तुम थके हुए हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम खाली बैठा रहना पसंद करोगे। एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, कहते जब तुम आग के सामने बैठोगे, मतलब जैसे हमारे यहाँ भी चूल्हे में जो है वो लकड़ियां रखते हैं, तो आग के अमूमन जो है वो सर्दियों में बूढ़े बंदे बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम जो है बूढ़े हो जाओगे, जब तुम उसके आगे कहीं चूल्हे के आगे जो है ओवन के आगे बैठोगे, लकड़ियां लगी हुई होंगी, आग जल रही होगी, तो तुम जब उस आग के सामने बैठोगे और ये किताब तुम्हारे हाथ में होगी, एंड स्लोली रीड ड्रीम्स ऑफ द सॉफ्ट लुक, कि उस वक्त तुम जो है वो सपने देखोगे बड़े सॉफ्ट, बड़े नरम, बड़े प्यार वाले। योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडो डीप, कि कहीं एट वंस हो गया कि तुम्हारी आंखें कहीं थी, ऑफ देयर शैडो डीप उनकी गहराई भी थी। यानी उस वक्त वो कह रहे हैं कि ये अब जो स्टेज है ये कौन सी है, जवानी की, कि उस वक्त खूबसूरती भी थी, आंखें भी अच्छी थी, खूबसूरत थी, गहरी थी, तो देखने में क्या था, खूबसूरत थी। अब सेकंड स्टेज में कहते हैं हाउ मेनी लव्ड योर मूवमेंट ऑफ ग्लैड ग्रेस, कि उस जवानी की उम्र में तुम्हारा जो चेहरा था वो खिला हुआ था, और उस खिले हुए चेहरे को हर एक जो है वो पसंद करता था। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, इसमें दो चीजें बता रहे हैं कि फॉल्स और ट्रू, यानी फॉल्स गलत, ट्रू सच्चा। लव्ड योर ब्यूटी, के कुछ लोग जो थे होते हैं जवानी में, वो दूसरे को किस लिए पसंद करते हैं कि वो जवानी में खूबसूरत होता है। तो इसी तरह पोएट कहते हैं कि आपको वो लोग क्या करेंगे, आप सोचोगे कि वो उन्होंने आपकी ब्यूटी, उन्होंने आपकी खूबसूरती को पसंद किया, अब वो प्यार जो था तुम्हारे लिए वो गलत था, ठीक था, वो आपको पता नहीं चलेगा अभी। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, कहता है एक बंदा उस वक्त तुम्हें याद आएगा जब तुम कमजोर हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम आग के पास बैठोगे, तुम्हें पता चलेगा कि एक बंदा था जो मुझे सच्चा प्यार करता था, जो मुझे स्पिरिचुअल लव करता था, जो मुझे मतलब रूहानी प्यार करता था। एंड लव दैट सारो ऑफ योर चेंजिंग फेस, कि वो तुम्हें, तुम्हारा जो चेंजिंग फेस था, तुम्हारा जो है चेंजिंग बदलता हुआ चेहरा है, उससे प्यार करता था। यानी कि वो खुशी में भी तुम्हारे साथ था, गम में भी तुम्हारे साथ था, वो जो है तुम्हारी फर्स्ट स्टेज में भी तुम्हारे साथ था और तुम्हारी सेकंड स्टेज में भी तुम्हारे साथ था। यानी जैसे वो तुम्हें जवानी में जो है वो चाहता था, प्यार करता था, पसंद करता था, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ये चीज तुम्हें महसूस नहीं हुई। अब वो इन दोनों स्टेंजों में कह रहे हैं, पहले स्टेंजे में उन्होंने बताया ही नहीं कि जो है वो पोएट किससे बात कर रहा है, वो किसी से बात कर रहा था दो स्टेजों में। अब सेकंड स्टेज में वो किससे मुखातिब है, किससे बात कर रहा है, अपनी बिलव्ड से, किसी लाइफ पार्टनर को, किसी लड़की को उन्होंने चुना है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो कहता है कि तुम जब बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें मैं याद आऊंगा कि आम लोग तुम्हें जो है वो पसंद करते हैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे रूहानी पसंद करता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार मरमर ए लिटिल सैडली होल लव फ्लैट, कहते हैं जब तुम बैठोगे उस वक्त तुम अकेले होगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारी स्टेज कौन सी होगी, बूढ़ी स्टेज होगी, तुम कमजोर होगे, थके हुए होगे, और तुम क्या कहोगे, मरमर, यानी तुम अपने मुंह में आस्ता आस्ता जोर से बोल भी नहीं सकोगे क्योंकि तुम कमजोर हो चुके होगे। लिटिल सैडली होल लव फ्लैट, के मेरा प्यार तो उड़ गया, मुझे जो पसंद करते थे वो अब कहां चले गए, वो छुप गए। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन अवर हेड, वो मेरे सिर से ऊपर उड़ के
पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों के पीछे हो गए एंड हिड हिज फेस, उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया एंड ए क्राउड ऑफ स्टार, कहाँ पे, उन्होंने जैसे जो है वो चांद छुपता है और तारे जो है वो निकल आते हैं, ऐसे वो भी जो है वो छुप गए। इसमें वो कहते हैं कि उस वक्त तुम जो है बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, उस वक्त तुम्हें याद आएगा कि कोई बंदा तुम्हें जो है वो अपने दिल से मन से चाहता था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ इज द जर्नी फ्रॉम योर टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कि जवानी से लेके तो हमारी जो है बुढ़ापे तक इस पोएम में कैसी जो है वो की हुई है डिस्क्राइब, पोएट जो है वो स्टेजेस कैसे डिवाइड करता है। तो जवानी में वो कहते हैं कि फिजिकली हम जो है वो खूबसूरत होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ग्रेस ऑफ फेस होती है, और बुढ़ापे में हम जो है कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे रिंकल्स यानी चेहरे पे जुड़ियाँ पड़ जाती हैं और हम जो है वो थके हुए होते हैं, स्लीपी होते हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि हम बैठे ही रहें। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें ये है कि उसमें ओल्ड स्टेज में हमें हर कोई छोड़ देता है। और सेकंड है कि डिस्क्राइब फुल ऑफ स्लीप मीन्स, फुल ऑफ स्लीप मीन्स मतलब पूरी तरह सोया हुआ, यानी इतना कमजोर कि कोई काम ना कर सके। यानी ये कहते हैं कि ओल्ड स्टेज में हम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आलसी, कि हमें हिम्मत नहीं होती, हम टूट चुके होते हैं, हमारी एज निकल चुकी होती है, तो हम कोई काम करने के काबिल नहीं रहते और हम अकेले बैठना पसंद करते हैं कि हमारा सारा टाइम हम किस में गुजारें, हम बैठे रहें, अकेले बैठे रहें। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द पोएट्स लव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स दोज हु आल्सो लव्ड हिज बिलव्ड, कि जो पोएट हैं इनका प्यार अपनी महबूबा के लिए, अपनी बिलव्ड के लिए अलग कैसे है, अलग जो दूसरे लोग भी प्यार करते हैं लेकिन इसका प्यार अलग कैसे है। इनका प्यार अलग इस तरह से है कि ये कहते हैं कि मैंने उसको स्पिरिचुअल लव किया, यानी रूहानी प्यार किया, वो इसमें इनके साथ वैसे ही मोहब्बत करते हैं जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। और कुछ लोग जो होते हैं वो जवानी में करते हैं, बुढ़ापे में जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये है बेटा आपके क्वेश्चन। तो इसमें अगर कोई चीज़ आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आए।